Assalamu alaikum dear students. Welcome you all in today's video lecture. Today we are going to discuss the topic the emergence of industries in India. At the same time, we will try to understand what were the problems which were faced by the early industrialists during British rule. Similarly, we will also discuss the important topics related to the establishment of industries, factories and mills in India. Hope you will enjoy this video as well. You are requested to subscribe this channel for more videos and know us, update yourself with the latest information provided by these videos. So iron and steel factories come up in India. This is the topic which we are going to discuss in this video. The year was 1904. In the hot month of April, Charles Weld, an American geologist, and Dorabji Tata, the eldest son of Jamshedji Tata, were traveling in the Chhattisgarh in search of iron ore deposits. They had spent many months on a costly venture looking for sources of good iron ore to set up a modern iron and steel plant in India. Jamshedji Tata had decided to spend a large part of his fortune to build a big iron and steel industry in India. But this could not be done without identifying the source of fine quality iron ore. One day, after traveling for many hours in the forests, Weld and Dorabji came upon a small village and found a group of men and women carrying basket loads of iron ore. These people were Agarias. तो जो स्टेटमेंट मैंने आपके सामने यहाँ पे पढ़ी है ये बेसिकली दी गई है जो टाटा एंड आयरन या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ है जो टाटाज़ की बनी हुई है जिसको हम टिस्को कहते हैं वो किस तरह से बनी। तो काफ़ी पुरानी बात है 1904 की जब चार्ल्स वेल्ड जो अमेरिकन जियोलॉजिस्ट था जो जियोलॉजी में रिसर्च कर रहा था हिंदुस्तान में, साथ में दोराबजी टाटा थे यानी जो एल्डेस्ट सन थे जमशेदजी टाटा। टाटा के बारे में तो आपको पता है जो टाटा काफ़ी मशहूर समझे जाते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो सब ये एक बड़ा सा ग्रुप आया था जो कई महीनों तक घूमते रहते थे सिर्फ इस चीज़ की तलाश में कि कहाँ उनको एक अच्छा आयरन ओर मिलेगा, वो एक आयरन और स्टील इंडस्ट्री वहाँ पे बनाएंगे। इस तरह से जमशेदजी टाटा ने भी अपना सारा पैसा जो भी अर्न किया था ये डिसाइड किया था कि मैं ये सारा पैसा खर्च करूँगा और एक बड़ी सी आयरन और स्टील इंडस्ट्री यहाँ पे बनाऊँगा। लेकिन ज़रूरत थी रॉ मटेरियल की, रॉ मटेरियल यानी आयरन ओर, बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर। तो एक दिन ट्रैवलिंग के दौरान वो एक फॉरेस्ट एरिया से गए और उस फॉरेस्ट एरिया में उन्होंने कुछ मेन और वीमेन जो चल रहे थे उनके सरों पे बास्केट्स थे और उन बास्केट्स में था आयरन ओर। इन लोगों के बारे में कहा जाता है दीज वेर अगारियाज। ये वो लोग थे जो ट्राइबल्स थे जो मोस्टली विलेज एरियाज़ में रहते थे, फॉरेस्ट एरियाज़ में रहते थे और इनका काम ही था इन माइनस से खोद कर ये आयरन ओर निकालना और फिर फर्नेसेस में इन्हीं के टूल्स बनाना, इम्प्लीमेंट्स बनाना। आपके सामने है जॉर्ज वेल्ट और जो जमशेदजी टाटा है उनके जो एल्डर सन थे। ये है जमशेदजी टाटा और पहला जो फोटोग्राफ आपने देखा वो उसका बड़ा बेटा था। तो ये है वो जमशेदजी टाटा जिन्होंने हिंदुस्तान में इंडस्ट्री जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है उसकी बुनियाद रखी। तो when asked where they had found the iron ore, the Agarias pointed to a hill in the distance. Weld and Dorabji reached the hill after an exhausting trek through dense forests. On exploring the hill, the geologists declared that they had at last found what they had been looking for. Rajhara Hills had one of the finest ores in the world, but there was a problem. The region was very dry, and water necessary for running the factory was not to be found nearby. The Tatas had to continue their search for a more suitable place to set up their factory. However, the Agarias helped in the discovery of source of iron ore that would later supply the Bhilai steel plant. A few years later, a large area of forest was cleared on the banks of the river
Subarnarekha to set up the factory and an industrial township Jamshedpur. तो जब ये अघारियाज इनको इनको देखा गया, अघारियाज को इनसे पूछा गया आप ये कहाँ से लाते हैं, तो उन्होंने एक हिल की तरफ इशारा किया और कहा वहाँ से लाते हैं। वेल्ड और दोराब जी वहाँ पे कई दिनों तक चलते रहे, डेंस फॉरेस्ट्स में से, घने जंगलों में से गुजर के वो आखिरकार वहाँ पे पहुँच गए। तो ऐसी जब वहाँ पे पहुँच गए तो वेल्ड ने कहा जो हम ढूंढ रहे थे आखिर हमको मिल गया। लेकिन जो ये राजहारा हिल्स थे यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी कि ये एरिया ड्राई था, यानी यहाँ पे जो पानी की प्रॉब्लम थी वो क्लियर नज़र आ रही थी, यानी यहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं था, क्योंकि आयरन के लिए पानी ज़रूरी है, कटिंग के लिए या और किसी जब हम इसको हॉट करते हैं फिर उसको कूल करना पड़ता है उसके लिए पानी की ज़रूरत पड़ती थी, तो पानी यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। इस वजह से यहाँ पे फैक्ट्री लगाना, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगाना आसान नहीं था। फिर से सर्च शुरू हो गया, फिर से एक नई प्लेस की तलाश में निकल पड़े और इस तरह से अगारियों ने उनकी मदद की और एक ऐसी जगह उनको मिल गई जहाँ पे पानी भी मौजूद था। और इस तरह से पहला प्लांट जो जिसको हम कहते हैं आयरन प्लांट या स्टील प्लांट वो था भिलाई प्लांट। और कुछ टाइम के बाद जंगल के कुछ हिस्से को साफ किया गया और जो रिवर यहाँ पे नज़दीक था वो था सबरनरेखा रिवर, जिससे पानी लाया गया और इस तरह से एक छोटा सा टाउनशिप बनाया गया जमशेदजी टाटा के नाम से और इस टाउन का नाम पड़ गया जमशेदपुर। तो ये वही जमशेदपुर है जो आज हिंदुस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए काफ़ी मशहूर समझा जाता है। तो ये है वो राजहीरा हिल्स जहाँ से इनको मिला था जिसको हम कहते हैं एक बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर। ये वो आयरन माइंस है जहाँ से यूजुअली आयरन को निकाला जाता है और फिर इंडस्ट्री में या जो यहाँ पे इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है उसमें ले जाकर उसके टूल्स या मशीन पार्ट्स या जो भी बनाना होता है वो बनाया जाता है। यू कैन सी हियर कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आयरन रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो इस तरह से हमने देखा जो पहली टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री थी वो बन गई कहाँ पे, रिवर जो मशहूर रिवर है जिसका नाम था सुबर्णिका रिवर, वहाँ पे बन गई। आपके सामने ये जो पिक्चर है ये बिल्कुल उसी टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री की है जो जमशेदजी टाटा ने बनाई गई थी। तो इस तरह से 1940s में ये इंडस्ट्री काफ़ी मशहूर साबित हुई और बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ से प्रोड्यूस होने लगी। तो इस तरह से हमें पता चला पहले तो ब्रिटिशर्स ने इंपोर्ट किया वो टूल्स, वो इम्प्लीमेंट्स जो ब्रिटेन में बनते थे, लेकिन अब हिंदुस्तान की अपनी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ बनने लगी जो बाद में डेवलप होकर बड़ी बन गई। तो यहाँ के लोकल जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया। हालांकि इंडस्ट्रीज़ तो बन गई लेकिन इससे ये पता नहीं चलता है कि इंडस्ट्रीज़ कितनी बनी। उतनी तो नहीं बनी क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज़ बंद भी हो गई, उन्हें रॉ मटेरियल महंगा मिला, लेबर फोर्स काफ़ी महंगा था, मशीन्स काफ़ी पुरानी थी। बल्कि यहाँ पे ये भी बताया जाएगा कि जो ये इंडस्ट्री बनाई गई इसमें जो लगने वाली मशीन्स थी वो सेकंड हैंड मशीन्स थी जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ में कहीं पे थी। यानी ब्रिटिशर्स ने जिन मशीन्स को फेंक दिया था अब वो यूज़ नहीं कर रहे थे, हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने उन्हीं पुरानी मशीन्स को ख़रीदा, अपनी इंडस्ट्रीज़ में लगाई और इस तरह से काम शुरू किया। तो यहाँ पोल्यूशन रेट भी बहुत ज़्यादा थी इन मशीन्स में क्योंकि ये सेकेंड हैंड माल था और जिस वक्त ये बनाई गई थी मशीन्स उस टाइम पे पोल्यूशन पे कोई कंट्रोल भी नहीं था। तो इस वजह से पोल्यूशन रेट भी आपको यहाँ पे क्लियर कट नज़र आती है। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरह से पहली इंडस्ट्री बनाई गई थी जिसको नाम दिया गया बाद में टिस्को। ये थी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो इस तरह से यहाँ से स्टील प्रोड्यूस करने लगी है 1912 में, क्योंकि यहाँ पे वाटर भी नज़दीक था, आयरन ओर भी काफ़ी नज़दीक था। इस वजह से ना तो रॉ मटेरियल की कोई प्रॉब्लम थी ना ही पानी की। So all through the late 19th century, India was importing steel that was manufactured in Britain. Expansion of the railways in India had provided a huge market for rails that Britain produced. So for a long while, British experts in the Indian railways were unwilling to believe that good quality steel could be produced in India. By the time TISCO was set up, the situation was changing.
In 1914, the First World War broke out. Steel produced in Britain now had to meet the demands of war in Europe. यहाँ पे कुछ फैक्टर्स क्लियर करना चाहूँगा। पहला फैक्टर, जब टिस्को बन गई तो ब्रिटिशर्स को बिल्कुल यकीन नहीं था कि ये उस क्वालिटी का स्टील प्रोड्यूस करेंगे जिस क्वालिटी का स्टील प्रोड्यूस किया जाता है ब्रिटेन में। दूसरा, वो इन चीज़ों को ख़रीदने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि वो समझते थे जो मशीन्स हम फेंक चुके हैं ये उन्हीं मशीन्स का इस्तेमाल करके स्टील प्रोड्यूस करेंगे, तो कहाँ अच्छी क्वालिटी का होगा। दूसरा, जैसे जैसे रेलवे नेटवर्क बढ़ता गया, क्योंकि रेलवेज़ की इंपॉर्टेंस थी ब्रिटिशर्स के लिए, वो रेलवेज़ के थ्रू फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था उस टाइम पे। रेलवेज़ का इस्तेमाल करके बहुत सारा रॉ मटेरियल हिंदुस्तान से निकाला जाता था, ब्रिटेन पहुंच जाता था, ब्रिटेन से वापस वो फिनिश्ड गुड्स की शक्ल में वापस आता था। यही रेलवेज़ नेटवर्क यूज़ किया जाता था फिनिश्ड गुड्स को डिस्पर्स करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में। इस तरह से हिंदुस्तान एक वास्ट मार्केट बन गया और फिर इसी रेलवे नेटवर्क को एक्सपेंड करने के लिए ज़रूरत थी आयरन ओर की और आयरन इम्प्लीमेंट टूल्स की, जो प्रोवाइड की बाद में टिस्को ने। तो 1914 में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हो गया तो स्टॉप हो गया ब्रिटेन से जो भी मटेरियल आता था, जितने भी गुड्स फिनिश्ड गुड्स आते थे उनको स्टॉप हो गया। अब वहाँ से कुछ रॉ मटेरियल या किसी तरह की कोई चीज़ लगभग नहीं आती थी, क्योंकि वॉर के दौरान यूजुअली ये पॉसिबल नहीं होता है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चीज़ों को ट्रांसपोर्ट किया जाए। ऐसी सिचुएशन में जो टिस्को था उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि जितनी भी लोकल डिमांड्स थी, जितनी भी रेलवे नेटवर्क यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, उसका सारा जो भी पार्ट्स थे, जितने भी मशीन पार्ट्स थे आयरन के या स्टील के, वो सारा टिस्को ने प्रोड्यूस किया। इस तरह से टिस्को ने मार्केट बनाया वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान, और जो ब्रिटेन का मार्केट था हिंदुस्तान में वो आहिस्ता आहिस्ता क्लोज होने लगा। तो इस तरह से शुरुआत हो गई टिस्को की इंडिया में, और ग्रेजुअली इनका जो मार्केट था वो एक्सपेंड होने लगा। बाद में वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भी इनसे बहुत सारे मशीन पार्ट्स खरीदे और उनको यूज़ किया। तो ये है टाटा की आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो आज इस वक्त मौजूद है, और उस टाइम पे ये इनिशियल स्टेज पे थी। आज ये काफ़ी डेवलप्ड है और काफ़ी प्रोग्रेसिव भी है, काफ़ी मशहूर है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने देखा किस तरह से टिस्को की बुनियाद पड़ी, जो टाटाज़ ने अपनी इंडस्ट्री बनाई, और किस तरह से कौन सी हर्डल्स थी, कौन सी प्रॉब्लम्स थी, बल्कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी इनको फेस करनी पड़ी। इनको यूजुअली लोन्स नहीं मिलते थे, और अगर मिलते भी थे तो उनकी इंटरेस्ट रेट हाई होती थी। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स के बाद उन्होंने सेकेंड हैंड मशीन्स का यूज़ किया अपनी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो फाइनली इस्टेब्लिश की गई, तो ये फिर नंबर 1 इंडस्ट्री बन गई पूरे हिंदुस्तान में। बाकी चीज़ों के बारे में फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।